ये न्यू टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज टॉपिक नंबर 2। इसके पहले हमने डीएफ लॉग एलिमेंट का स्टडी किया था। सो वी आर गोइंग टू दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक नंबर 2 इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1893 1930 and 1930 to 1932. So that is after 1972 is here. Okay, here in 1893 this is the one of the scientist name is Bluestrand theory. On the basis of the name of the scientist we discovered this is the one of the theory on the basis of the acid and basis concept as well as the coordination complex. It means that this every compound is made from this acid and base. Every complex compound on the salt it is obtained salts. What is the salts? Salts is nothing but water. It is one of the neutral compound. It is made from acid and base. What is the properties of the salts? What is the classification of salt? ये कंसेप्ट हमने एसिड और बेस, जो हमारा एसिड और बेस का लेक्चर हुआ है उसमें हमने एसिड बेस में इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और उसके बाद में उसका प्रॉपर्टीज है ना, यूजेस एंड प्रॉपर्टीज. So we have studied the part of this is the acid and bases. One of the part is salts. So it means that this is the acid and bases. It is made. This salt is made from the acid and bases. The salt is nothing but what a complex compound. This is nothing but a complex or the complex compound or coordinate compound. Afterward, this is the in 1930 to 1932. That is one of the scientists. This is one of the most important phenomena. This is nothing but optical isomerism. Optical isomerism of the coordination compound. Optical isomerism or what a coordination compound. This most important concept to test and what the bond between the metal and ligand is what. This type of the bonding connectivity present between the metal and ligand. The scientist किसने बताया? ये बताया साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने. नाम था इसका अल्फ्रेड वर्नर. So this is the called as the father of coordination compound. सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना इसने बताया था. क्या बताया था? कि मेटल और लिगेंड के बीच में किस टाइप्स की बॉन्डिंग होती है और उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसा होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पार्ट क्या है, कायरलिटी मॉलिक्यूल का क्या होता है, ये बताया साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने. और इसी से उसको नोबेल प्राइज मिला था in 1932 who got the Nobel Prize and who called the father of coordination compound. After that 1972, that's 1930. After 1932, so that is another scientist, that is what the scientist Pauling, scientist Pauling, Slater, Hitler and Landa. So that is Hitler and Landa. So afterward किसके? अल्फ्रेड, साइंटिस्ट अल्फ्रेड के बाद में है ना scientist Werner, after Werner. So that is the after Werner. So scientist again, what the name of this nothing but a fancy not what is the that is Sidgwick. इसमें आया अपनी बाद में WIC. The scientist Sidgwick. Then what after the Sidgwick? That is from the concept is scientist Bethe and Blake. So that is the discover the phenomena of this is nothing but what a bonding connectivity as well as this is the optical isomerism. It is nothing but what a stereochemistry of coordination compound. कायरलिटी के बारे में, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बताया था अल्फ्रेड ने. उसके बाद में पाउलिंग, स्लैटर, हिटलर, लंडन आया. उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है ना, ये भी हम डीपली मतलब इन डीप देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है. सो आफ्टरवर्ड दिस इज द साइंटिस्ट थ्योरी, दिस इज द सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. ये कंसेप्ट बताया साइंटिस्ट सिडविक ने. देन साइंटिस्ट बेथे एंड ब्लेक, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट दिस साइंटिस्ट बेथे एंड ब्लेक. This is what are the crystal field theory, and after the crystal field theory, this is molecular orbital theory. So that is after the crystal field theory. तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम इसका assumption, postulate as well as demerit भी देखने वाले हैं. So first of all, what is coordination compound? Coordination compound क्या होता है? Study of coordination compound, coordination bond, coordinate bond.
स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये हम देखेंगे। मेटल है, यहाँ पे लिगैंड है, इसको कहेंगे लिगैंड। क्या होता है लिगैंड और क्या होता है मेटल? मेटल का असतो, लिगैंड का असतो। So the bond present between the metal and ligand, the atoms or group of atoms having tendency to donate the electrons to the central metal atom is known as what? Coordinate bond is formed between the ligand and metal. लेकिन यहाँ पे ligand की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? मेटल की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे? What is the metal? मेटल होता है लेविस एसिड और लिगैंड होता है लेविस बेस। क्या होता है लेविस एसिड, क्या होता है लेविस बेस? इसके लिए हमारा एसिड और बेस का आपको वीडियो लेक्चर देखना होगा। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, अरेनियस एसिड क्या होता है, ब्राउनस्टेड एसिड क्या होता है, उसके बाद में लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होता है, ये कल से बताया है उसमें। सो इन ब्रीफली आई विल टेल दिस इज द व्हाट इज द लेविस एसिड, व्हाट इज द लेविस बेस। तो यहाँ पे हम मेटल की बात करेंगे तो मेटल क्या होता है? मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने का होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात कर रहा हूं। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है? लेविस बेस होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर लेविस बेस होता है। प्रोटॉन डोनर लेविस, सॉरी प्रोटॉन डोनर एसिड होता है। क्या बोला मैंने, क्या बोला? हाँ यस, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, करेक्ट यस। तो यहां पे हम बोलेंगे कि लेविस क्या है। लेविस कैसे थोड़ा सा अलग है। इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? अरे भाई इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे होता है लेविस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनर लेविस बेस, बराबर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन डोनर लेविस बेस। तो यहाँ पे ये टर्म मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेटल क्या है? the atoms or group of atoms having tendency to donate to accept the electrons or lone pair of electrons, इसको कहते हैं मेटल। लिगैंड किसको कहेंगे? the tendency of atoms or group of atoms which donate the electrons, lone pair of electron is known as ligand. Very simple. The tendency of atoms or group of atoms to donate electron pair to the another atoms or group of atoms, उसको कहेंगे ligand, उसको कहते हैं ligand। मेटल किसको कहते हैं? the tendency of atoms or group of atoms having accept electron accept करने की tendency, उसको कहते हैं ligand। so that is what are ligand, electron donor, metal, electron acceptor। तो ligand होता है लेविस बेस और मेटल होता है लेविस एसिड। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे मतलब केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक एग्जांपल, एक रिएक्शन, एक एग्जांपल की मतलब रिएक्शन के तौर पे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ऐसा देखो क्या था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, अमोनिया मॉलिक्यूल, ये लेविस बेस होता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको? इस एटम को। दैट इज द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। What I can say, boron trifluoride. This boron trifluoride having tendency, the atoms of group of atom having tendency to accept the electron or lone pair of electron। तो यहाँ पे हुआ लेविस एसिड और डोनेट करने का काम कर रहा है लेविस बेस। अब इसके बीच में बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में। तो ये बॉन्डिंग कौन सा फॉर्मेशन हुआ? यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ। देने वाला लेने वाला, देने वाला लेविस बेस, लेने वाला लेविस एसिड, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगैंड इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याला म्हणतात कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी गुड। The atoms of group of atoms having tendency to accept the electrons is known as ligand. The atoms of group of atoms having tendency to donate the electrons is known as a ligand and accept the tendency to donate the metal. क्या बोला? The atoms of group of atoms having tendency to accept the electrons or lone pair of electron is known as metal. The atoms of group of atoms having tendency to donate the electron or lone pair of electron is known as ligand। तो यहाँ पे हम ligand क्या होता है ये एक्सप्लेन किया कि ligand एक लेविस बेस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होता है।
ऐसा एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने का कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन में मतलब एक एग्जांपल हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है। K4 FeCl6, K4 FeCl6, ये हमारे पास एग्जांपल है। ये K4 जो है ये होता है आउटर बोलो काउंटर आयन। ये कौन है? ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है, ये मेटल होता है और यहाँ पे ये लिगैंड होता है और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे जो होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कुल मिला के जो हुआ उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। क्या? काउंटर आयन प्लस मेटल प्लस लिगैंड। ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेनिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे। सपोज मेरे पास Ml2 है, क्या है मेरे पास? Ml3 है, क्या है मेरे पास? Ml4 है, क्या है मेरे पास? Ml5 है, क्या है मेरे पास? Ml6 है। ये कंपाउंड हमने लिया। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन ये करना है, क्या कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, हमको डिफाइन करना है कोऑर्डिनेशन नंबर हे मला एक्सप्लेन करायचं आहे। मग जर आपण याला एक्सप्लेन करायचं असेल याला कोऑर्डिनेशन नंबरला तर कसं करणार? फॉर एक्झाम्पल मी इथे Ml2 घेतला, Ml3 घेतला, Ml4 घेतला, Ml5 आणि Ml6। आता M आपण M ला काय म्हटलं? मेटल म्हटलं। मेटल हा सेंटरला लिहिला, लिगॅंड आपण त्याच्या साइडला लिहिला, म्हणजे इलेक्ट्रॉन लिगॅंड काय करेल? इलेक्ट्रॉन डोनेशनचं काम करेल। मग इथं जो बॉन्ड फॉर्मेशन झाला तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड असेल। मग याची लिनियर जॉमेट्री काय झाली? लिनियर जॉमेट्री झाली। ही जी कन्सेप्ट आहे ही कन्सेप्ट जॉमेट्री, मी इथं जॉमेट्री बोललो। जॉमेट्रीची कन्सेप्ट आपल्याला कुठे बघायची आहे? व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरी मध्ये बघायची। व्हॅलेन्स बॉन्ड थेरीचा अझम्पशन। So before that we want to, this is the part of this is the study of this is geometrical concept and the hybridization concept. तर इथं मला काय सांगायचं आहे? मला इथं हे सांगायचं आहे, मला इथं हे एक्सप्लेन करायचं आहे की कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय? कशाला म्हणायचं कोऑर्डिनेशन नंबर? तर कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम। इथं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार आणि याचं कोऑर्डिनेशन नंबर किती झालं? 2। कारण 2 लिगॅंड आहेत। याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल? 3। याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल? 4। याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल? 5। कोऑर्डिनेशन नंबर किती असेल? 6। व्हेरी सिंपल। मग कोऑर्डिनेशन नंबर आपल्याला डिफाइन कसं करायचं? The total number of electron donate to the central metal atom. Ligand, number of ligand is known as coordination number. Very simple. मग आता आपण इथं पर्टिक्युलरली जर आपण एक्झाम्पल जर घेतलं, कुठलं घ्यायचं? AgNH3 taken twice. दूसरा एग्जांपल NiCO4 taken 4 times. तीसरा एग्जांपल NaCN cyanide ligand here. This is nothing but 2 positive charge and 2 negative charge. तीसरा एग्जांपल CONH3 अमोनिया। NaCN अमोनिया घ्यायचं, मला 6 टाइम घ्यायचा, 3 पॉझिटिव्ह घ्यायचा, दिस इज व्हॉट? CONH3 टेकन 6 टाइम 3 पॉझिटिव्ह। तर आता मला इथं सांगायचं कोऑर्डिनेशन नंबर काय? त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय किती आहे? किती लिगंड इथं? 2। मग ह्याचा मेटल हा झाला, हा लिगंड झाला, इथं लिगंड आहे, टोटल नंबर ऑफ लिगंड किती आहे? 2। टोटल नंबर ऑफ लिगंड किती आहे? 4। टोटल नंबर ऑफ लिगंड 4, टोटल नंबर ऑफ लिगंड 6, टोटल नंबर ऑफ लिगंड प्रेजेंट। दिस इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट? 4, कोऑर्डिनेशन नंबर व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज व्हाट? 6। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब ऐसा हम जब लिखते हैं निकेल यहाँ पे सेंट्रल मेटल में है, तो यहाँ पे इसको डोनेट करने वाला जो लिगेंड होता है, सपोज यहाँ पे हमने लिया NH3 अमोनिया, हमने लिया। इसका मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 एक लिगेंड 2 देता है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट हुए यहाँ पे? 8 है ना, 4 है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो 8, लेकिन लिगेंड कितने हैं? 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, इसका 4 हुआ, इसका 4 और इसका 6। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? कोऑर्डिनेशन